Hello students, we had been studying our second chapter, Kings, Farmers and Towns. And the next and last point was the limitations of inscriptional evidence. Peter, you know it very well that to know about the past things, past events, there are some evidences which have been found by our historians, by our archaeologists. Hmm. But the great contribution to know about the past things comes from the inscriptions. ठीक है बेटा? That is why this chapter is also tells how inscriptions tells a story. मतलब बेटा जो साक्ष्य हमको मिलते हैं उससे हम पुराने समय के इतिहास के बारे में या अन्य बातों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इंस्क्रिप्शन से मिला है, ठीक है ना। जो अभिलेख हमको मिले हैं खुदाई में, उनका सबसे बड़ा योगदान है। बट इवन it cannot be declared absolutely 100% that all the things which are mentioned on the inscriptions are true. उन पे जो बातें लिखी वो सारी की सारी बातें एकदम सच हैं, इस बात को तो कहा नहीं जा सकता है। So it is very impossible to rely 100% on those inscriptions. Why? Because those inscriptions have been engraved by artisans only by saying to the rulers. यानी जो शासक उस समय के रहे होंगे, उन्होंने जो बातें कही होंगी उन्हीं के आधार पर उन्होंने लिखा होगा ना। तो it may not be necessary that those things might be followed everywhere in that state. वो चीज़ें सब जगह जो है फॉलो की जाती हैं, ये तो कोई सर्टेन नहीं है। बट वी हैव टू मतलब इसको वी हैव टू एग्री फ्रॉम इट, हमें इससे राजी सहमत तो होना ही है, ठीक है ना। बट बेटा देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, इट इज आल्सो फैक्ट। अभिलेखों की भी कुछ सीमा होती है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस सच एज, लेट अस नो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। चलिए देखते हैं बेटा। Here are some restrictions, just as inscriptions have some limitations. Letters may be very faintly engraved. Inscriptions may be damaged or letter missing. Inscriptions lost or destroyed due to ravages of time, and ability of the inscriptions is very less. Those inscriptions do not give the complete idea of political and economic history, and it is not clear that what was the daily routine of public, how they conduct their agriculture, what was the common life. It is not recorded absolutely. Let us know one by one. चलो बेटा, इंस्क्रिप्शंस हैव सम लिमिटेशंस। बेटा हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। कुछ समय तक वो जो है उसी रूप में रहता है, बट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इट मे बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी फेंटेड। समझ बेटा। इसके अलावा लेटर्स मे बी वेरी फेंटली इनग्रेव्ड, मतलब those script which was engraved on a hard stone that may be very fainted, वो बहुत जो मतलब धूमिल हो जाती थी, समझना बेटा। और our archaeologists or historians when tried to consider those things, many letters were fainted, so they left those words because they could not consider those things। मतलब जो खुदाई की गई थी बेटा पत्थरों पे, उसमें तमाम जो है वो हल्के थे, धूमिल थे, क्योंकि ऊपर से खुदाई करनी होती थी ना। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियन जब उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कहीं कहीं पे, तो उसे उन्हें छोड़ देना पड़ता है। समझना। नेक्स्ट बेटा, इंस्क्रिप्शंस मे बी डैमेज्ड। वो जो इंस्क्रिप्शन है वो डैमेज हो सकते थे, या हो गए हैं तमाम। और लेटर्स मिसिंग, उस पर जो लेटर्स
इनग्रेव किए हुए थे वो मिस कर गए हैं, समझा। सो टू कंसिडर एवरीथिंग अपीयर्ड सो डिफिकल्ट, उन हर चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल लगता था, ये बात थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इंस्क्रिप्शंस लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड रेवेजेस ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, it is probably evident that there are the limits, because sometimes there are technical limitations. Letters are very faintly engraved and thus reconstruction are uncertain. समझो बेटा, यानी उनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि समय के साथ वो धूमिल होते जाते हैं, लेटर्स मिसिंग करते जाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अवेबिलिटी इज लेस। अवेबिलिटी इज लेस यानी those inscriptions are very less, those are not found everywhere, so to consider everything is difficult. It is not clear that those things which were engraved on those inscriptions were followed everywhere in that state. यानी वो चीज़ें जो उस पर लिखी हुई थी वो हर जगह फॉलो की जाती थी कि नहीं की जाती थी, इस बात को कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि द अवेबिलिटी ऑफ दोज इंस्क्रिप्शन इज लेस, दोज इंस्क्रिप्शंस आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, कहीं कहीं मिले हैं बेटा, ठीक ना। सो इट इज नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है बेटा, नॉट गिव द कंप्लीट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। मतलब ऑन दोज inscriptions the things are engraved which the rulers said, यानी what was the ruler's opinion, what was their view. The artisans used to engrave only those things, but they did not mention about the political and economic history of that time. So it is very difficult to consider that what was the political situation, what was the economic situation of that states, where the peasants were pleased or not with the रूल्स ऑफ द किंग, देयर किंग, यानी उस समय के जो किसान वर्ग हों या आम पब्लिक हो वो अपने राजा लोगों से खुश थी या नहीं थी, ये सब बातें तो जानना बहुत मुश्किल है, समझा। तो उन पे जो लिखा हुआ था उससे जो है ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती, उस पर केवल राजा के जो आदेश होते थे, जो उनको बातें अच्छी लगती थी वही खुदवाते थे, तो सारी बातों को जानना मुश्किल है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पर्सन हु कमीशन्ड इट। ठीक बेटा, तो इसमें तो ये पता चल रहा है कि अभी हमने जो आपसे बात बताई कि द आर्टिसंस engraved only those things which the rulers said, which the rulers ordered to them। समझ में आया क्यों? Because the content of the inscriptions almost invariably projects the perspectives of the persons who commissioned it। यानी जो पर्सन उसको कमीशन करता था, जो आदेश देता था, यानी who was the ruler, only his opinion was engraved on those inscriptions। So it is very difficult, it is impossible to know everything about that state। सो ना उस पर केवल उस राजा की, उस सम्राट के व्यू, उसकी ओपिनियन लिखी होती थी, जो उन्हें अच्छा लगता था वो लिखवाते थे। भाई कौन राजा चाहेगा कि उसके बारे में बुरी बात लिखी जाए, भले उसके राज्य में बुराइयाँ हों, लेकिन वो तो अच्छी बातें खुदवाएगा ना। तो इट इज़ नॉट सर्टेन दैट एवरी पर्सन, एवरी पब्लिक, एवरी पीजेंट वॉज प्लीज एट दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट है बेटा, रूटीन एग्रीकल्चर कॉमन लाइफ नॉट रिकॉर्डेड। मतलब फ्रॉम दोज इंस्क्रिप्शंस इट इज़ डिफिकल्ट to consider that what was the daily routine of people at that time and how did they conduct their agriculture, what was the base of their living. It is difficult to consider because there was no mention about these things. What was the common life of people, it is not recorded on those inscriptions. So it is difficult to say that everything
which is everything can be considered from those inscriptions, it is impossible. But it is fact that the great contribution to know the past things comes from the inscriptions. ये बात तो सच है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको पता चलती है लिखी हुई बातें वो इंस्क्रिप्शन से हैं, लेकिन सारी बातें जो है वो सब जगह फॉलो की जाती थी, इस बात को समझना मुश्किल है। तो ये रहा बेटा आपका लास्ट पॉइंट, द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। एंड नाउ योर सेकेंड चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।